Hi everyone, this is Dr. Mansi, and today we are again in the webinar series of Homeopathy 360 Teach Beyond Boundaries. And this session is in collaboration with Phonics Homeopathy. And today we have Dr. Himanshu Bhola, homeopath. So a very warm welcome to you. Thank you, ma'am. Now let me introduce our today's respected speaker. Dr. Bhola is a silver medalist in BHMS and have been devoted to the art and science of healing for over 20 years. He practices at his homeopathic clinic in New Delhi, where he specializes in treating psoriasis, hormonal disorders, psychic disorder, and many other chronic and complex conditions. He works centers around the mind method of homeopathy, focusing on the deep connection between mind and body to achieve lasting cure. In August 2024, he introduced Phonics Homeopathy, a unique approach that blends classical principles with innovative thinking to revive health and awaken the body's innate healing power. Since then, he has been sharing his cured cases and clinical insights through webinars, seminars on the social media platform, as well as conducting educational webinars and sessions in NDMC. We are very thankful to Dr. Himanshu Bhola sir for coming on the Homeopathy 360 platform, for sharing his experience, sharing his clinical insights on psoriasis. Today's session is how to cure and deal with psoriasis. So thank you so much for coming on Homeopathy 360 platform, and it's our pleasure to learn from you today. Thank you, ma'am. Thank you very much for such introduction. So I will start with the case, and thanks first for providing this platform of Homeo 360 to Phoenix Homeopathy. Whatsoever knowledge or experience I have, I will share with the delegates and try to let them know how to deal and try to cure the psoriasis, because it is a very difficult condition, and being autoimmune, it is not easy to cure always. But if we go by the right track, we can cure it easily. So I will share my case and give some inputs related to the disease and its psychodynamics as well. So I will share my screen and start with the case. Yes. Ma'am, my screen is visible? Yes, sir, it's visible. Okay. So welcome to the Phoenix, and today we go by a case. I will directly start with the case and we'll discuss the things in between as well. So this is the case of a 42-year-old male. Just a second, ma'am. I am having some problem with the window. Yeah. So the case goes in such a way. The patient came and said initially the problem was on the foot only. Lately, in last 2 3 years, it started spreading and cover the other parts as well. I started with the mainstream of medication, but not able to handle that because I feel very drowsy because of all those medications. I feel these medications are very strong. They might cause some serious impact on kidneys. तो पेशेंट आता है, उसका स्टार्टिंग में सबसे पहला से ही यही है कि मेरे को बीमारी तो काफी सालों से है, बट पिछले 2 3 साल से ये काफी बढ़नी शुरू हो गई। इनिशियली बहुत छोटा सा एक आधा पैच था। मैंने जो मेन स्ट्रीम ऑफ मेडिकेशन वो स्टार्ट किया, बट मुझे उसको लेने के बाद बहुत ज्यादा ड्रोजी में रह रहा हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि किडनीज पे इम्पैक्ट ना आ जाए इस चीज का। नाउ एज वी आर डीलिंग विद द स्किन, तो मेरा सबसे पहला जो ट्रैक है डील करने का, स्किन हमें बहुत सारी चीजें शो करती है। तो
तो इफ आई गो बाय द साइकोडायनेमिक्स, साइकोडायनेमिक्स मीन्स कि हर एक ऑर्गन की एक स्पेसिफिसिटी होती है कि उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। स्किन के केसेस के अंदर स्किन बेसिकली इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्किन को अगर हम देखें तो स्किन हमें क्या करती है? स्किन इज बेसिकली एन ऑर्गन फॉर लव, केयर, अफेक्शन एंड प्रोटेक्शन। whenever we love somebody, it's been done on the skin. When we pet somebody, yes, you have done such a great job, you have done good things, it always on the skin. And whenever we fall, the first injury, the first cut is always on the skin. तो स्किन के ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस हमारे लिए हो गए कि स्किन के केसेस के अंदर हमने बेसिकली डील कैसे करना है। अगर मैं स्टार्टिंग में, चलो केस को एक बार थोड़ा सा हम साइड पे करके स्किन का छोटा सा साइकोडायनेमिक्स देखते हैं कि हाउ स्किन इम्पैक्ट्स। Skin is basically two layers, epidermis, outer layer, and dermis, under skin, that we all already know. The function of the thick layer is to protect the organism against injury and attack. जो अभी मैंने आपको बताया कि अटैक एंड इंजरी को सबसे पहले जो प्रोटेक्शन होता है वो हमारा स्किन करती है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अटैक्स वी आर टॉकिंग अबाउट। सो द बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट लिंक टू द स्किन इज अटैक कॉन्फ्लिक्ट। जब भी हमारी बॉडी पे कोई अटैक होता है, हमारे ऊपर कोई अटैक होता है, तो फर्स्ट अटैक जो फेस किया जाता है दैट इज बाय द स्किन। हिट और ब्लो अगेंस्ट बॉडी और हेड। मेडिकल प्रोसीजर, सर्जरी, निडल बायोप्सी, इंजेक्शन, वैक्सीनेशन एक्सेट्रा, ये सारे पॉइंट्स इंजरीज के अंदर आ जाते हैं, फिजिकल इंजरी। देन कम्स अंडर अटैक इज ऑल्सो वर्बल अटैक, बीइंग yelled at, being scolded, threatened, sexist remarks, accusations, below the waist remarks and defamation। जैसे ही हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, if we go into the teenage, what we see, there are number of patients coming up with the problem of acne. So what happens in the acne? We pinpoint someone. That is the verbal attack. Because at teenage वो पूरे ग्रो भी नहीं हुए हैं, बट उनको लगता है वी आर इन द एडल्टहुड, हमें हमारे डिसीजंस लेने दिए देने चाहिए। एट टाइम्स वो डिसीजन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट मेजरली वो डिसीजन सही नहीं निकलते, बट उनको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, एंड देन दे आर बीइंग येल्ड एट। आपने ये क्यों किया? हाउ डिड यू डू दिस? हाउ कैन यू डू दिस? हाउ कैन यू परफॉर्म सच ए टास्क? आपको ऐसा नहीं बोला गया। तो ये बार बार येलिंग और पिन पॉइंट करना होता है। दैट इज द वर्बल अटैक ऑन देयर स्किन। You, how could you do this? You is your face value. That's why majority of time in the teenage we get acne on the face. इट इज नॉट ऑलवेज कि एक्नेस के अंदर हमें ऐसे ही जाना, बट दिस इज द कॉमन मोस्ट अप्रोच हाउ टू लुक इनटू द स्किन बेसिकली। Conflict of being unclean and soiled. Feeling unclean, smelly sweat, stinky feet, malodorous discharges and incontinence. ये सारी चीजें हमें uncleanliness की feeling देती हैं. Feeling soiled. When coming in contact with someone considered as repellent such as dirt, feces, urine, vomit, saliva, menstrual blood, etc. ये सारी चीजें unclean हैं, skin को dirty करती हैं। अब ये हो गया फिजिकल। साइकोलॉजिकली अगर हम देखें, डर्टी वर्ड्स थ्रोन एट वंस फेसेस और गॉसिपिंग बिहाइंड वंस बैक माइट प्रोवोक सच कन्फ्लिक्ट्स। कि ये जो अनक्लीनिंग कन्फ्लिक्ट है कि मैंने ऐसा नहीं किया फिर भी मेरी बुराई करी गई, मुझे ऐसा बोला गया, जब मैं मेरी फेस वैल्यू खराब हो रही है तो मेरी स्किन के ऊपर इम्पैक्ट आना लाजमी हो जाएगा। दिस इज हाउ वी गो इन स्किन इन जनरल। बिकॉज द साइकी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रियल डर्ट एंड व्हाट इज फिगरेटिव डर्ट। बॉडी को सिर्फ ये पता चल रहा है कि हाँ देयर इज सम प्रॉब्लम, कि बोला गया है उसकी वैल्यू है नहीं है, दैट वाज एक्यूरेट इनएक्यूरेट, बट बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगी। A soiled feeling could be triggered through physical contact with a person regarded as repulsive, drunk person, smelly person, person with contagious diseases. This is how, in general, we go by the skin. Now, if I talk about specifically for psoriasis, that is in epidermis. The epidermis is predominantly responsible for sensory perception such as temperature, pressure, and touch। टेम्परेचर के अंदर हमें हमेशा ये हॉट एंड कोल्ड का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, जैसे हम हीट एंड चिल लेते हैं। इन द सिमिलर वे, अगर आपको अफेक्शन मिल रहा है, आपको जो एनवायरनमेंट है वेलकमिंग है, तो डेट इज ए हीट फॉर यू, आप हीट फील करेंगे। और चिल एंड कोल्ड अगर हम टेम्परेचर वाइज देखें, साइकोलॉजिकली देखें, तो कोल्ड इज, इट इज ए कोल्ड रिसेप्शन। आई वेंट टू माई हाउस एंड ही गिव मी ए वेरी कोल्ड रिसेप्शन।
उसका मन ही नहीं था, उसने ढंग से मुझे अटेंड ही नहीं किया। वेरी कोल्ड वाइब्स, वी आर बीइंग गेटिंग वेरी कोल्ड वाइब्स। इट मीन्स कि टेम्परेचर यहाँ पे हमें ये चीज शो कर रहा है। फिजिकली हॉट एंड कोल्ड इज अ डिफरेंट थिंग, एंड मेंटली अगर हम उसको देखें तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। द बायोलॉजिकल conflict linked to the epidermis is a separation conflict experience as a loss of physical contact। तो यहाँ पे हमारे पास आता है सेपरेशन conflict, कि जब हम किसी से सेपरेट होते हैं, और वो सेपरेट फोर्सफुल भी हो सकता है, विद एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। अगर विद एक्सेप्टेंस है तो उसके अंदर फिर प्रॉब्लम नहीं है। एंड व्हेन वी गिव द मेडिसिन, और जब ये कंफ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, सेपरेशन कंफ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, तो पेशेंट में उस चीज को लेके एक्सेप्टेंस आ जाएगी। एंड इन दिस वे द सोरियासिस गेट क्योर्ड। सोरियासिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्फ्लिक्ट्स, दैट इज सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट, कि मैं अलग भी हो रहा हूं और अलग होने से मेरी वैल्यू भी डाउन हो रही है। So these are the two conflicts which go hand in hand in psoriasis. So this is somewhat about psoriasis and skin as well. तो अब जब पेशेंट ने ये चीज हमें बोली कि मुझे psoriasis है, तो इट मीन्स वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि हमें प्रोब कहाँ पे करना है। यहाँ तक पेशेंट का सही था कि मैंने डोमिनेंट फील्ड ऑफ मेडिकेशन का ट्रीटमेंट लिया है, एंड आई फील ड्रॉजी, एंड आई फील सम इम्पैक्ट माइट हैपन ऑन द किडनी, सो आई केम टू यू। तो यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा इन द सिमिलर वे उसको चीजें एक्सप्लेन करी कि ऐसे सेपरेशन देखा जाता है या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इन जनरल इन द लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट दैट ही कैन अंडरस्टैंड इजीली। एंड then I try to inquire about the routine stress, tension, and struggles. I have mentioned each and every word because you don't know patient is taking it as a stress, tension, or struggle in whatever way. When the patient say we belong to poor family, my mother struggled a lot to raise us. Now she is no more, and tears roll down from his eyes. इसका मतलब अगेन कहीं ना कहीं मदर से इश्यूज आ रहे हैं। शी इज नो मोर एंड ही स्टार्टेड वीपिंग। इट मीन्स कि मदर इज नो मोर, वही चीज जो भी हमने पहले सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस किया, कि कहीं ना कहीं वो सेपरेट हुआ है। तो हमें एक ट्रिगर मिला कि हमें पेशेंट को केस को किस डायरेक्शन में सॉल्व करना है, किस डायरेक्शन में समझना है कि ठीक है, पेरेंट एवरीवन इज नॉट ऑन दिस फॉर एवर, एवरीवन हैज टू डाई, बट किसी के डेथ से, किसी के डाई होने से, किसी के ना रहने से पेशेंट पे कैसे इंपैक्ट आ रहा है, डेट वी हैव टू सी। आई हैव टू सिस्टर्स, वन इज नो मोर एज शी डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो अब पेशेंट ने अपना आईपीआर क्या बताया हमें। आईपीआर इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि पेशेंट की फैमिली में कौन कौन है और उसके रिलेशंस कैसे हैं। मदर है हु इज नो मोर, दो सिस्टर्स हैं जिनमें से एक सिस्टर का डेथ हो चुका है इन एन एक्सीडेंट। देन आई ट्राई टू इंक्वायर हाउ द एब्सेंस ऑफ मदर इफेक्ट्स हिम, कि अगर वो मदर अवेलेबल नहीं है, मदर एब्सेंट है, तो वो मदर का ना होना पेशेंट को कैसे इंपैक्ट डाल रहा है। एज शी इज नो मोर आई ऑलवेज रिमेन टेंस, शी वॉज माई बैकबोन। दिस इज ए वेरी स्पेसिफिक दैट ए पेशेंट सेड, कि मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, वो सब कुछ संभालती थी, शी वॉज द बैकबोन। I don't know why I always remain angry and tense. Though business is also running smooth, still I don't understand. Everything is fine. सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी मैं गुस्से में, टेंशन में रहता हूँ। I don't know why, कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। I always wanted that everyone should listen to me. If someone refuses to agree, then that icks me. I always feel that I am the right one. This is self explanatory, कि मुझे लगता है सारी चीजें मेरे ही हिसाब से होनी चाहिए, I am the right, और अगर वो नहीं होती तो मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आई हैव बीन मैरिड सिंस 15 years एंड आई हैव 2 kids। तो ये सारा उसके साथ कम्युनिकेशन चल रहा था। आई हैव गेट द ट्रैक ऑफ समवेयर देयर मस्ट बी सेपरेशन बिकॉज ऑफ स्किन इज इन्फेक्टेड एंड इट इज सोरियासिस। अब इतने डिस्कशन के बाद वन वेरी प्रोमिनेंट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी इज कि पेशेंट ने पूरे केस डिस्कशन के अंदर अपनी मदर के बारे में इंटरप्रिटेशन दिया। माई मदर, माई 2 sisters, आई एम एंग्री, आई एम मैरिड सिंस 15 years, आई हैव 2 kids, बट देर इज नो वेयर मेंशन ऑफ द फादर। तो पिक्चर में फादर कहाँ पे है। तो ये हमारे माइंड में बहुत इजीली और बहुत क्विकली हमें परसीव करना है कि वेयर इज द फादर। वी हैव टू सी, इट मीन्स कहीं ना कहीं फादर के साथ इश्यूज होने चाहिए, तभी उसने कहीं भी मेंशन नहीं किया। अगर फादर इज नो मोर, उसने मेंशन किया सिस्टर इज नो मोर, वो फादर के लिए भी बोल सकता था, बट उसने फादर को कहीं मेंशन नहीं किया। इट मीन्स देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड दैट। I again note a point of absence of mother as he used the word backbone। अभी हम मदर पे थोड़ा सा वापस चलते हैं। She was my helping hand till she was alive। I have nothing to worry for। She takes care of everything I at home। I remain stress free।
जब तक वो थी मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। वो घर पे थी, हर एक चीज का ध्यान रखती थी। घर के हाउस होल्ड थिंग्स कैसे आएंगी, कहाँ से राशन आएगा, फ्रॉम वेयर वी गेट द ग्रोसरी एंड व्हाट टू बी मेड, हाउ द थिंग्स विल गो। शी इज देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आई हैव नथिंग टू वरी फॉर। आई विल गो टू माई शॉप, माई बिजनेस एंड डू द थिंग्स। शी वॉज अ मेन परफॉर्मर एंड डिसीजन मेकर, शी इज एवरीथिंग। तो मदर उसके लिए सब कुछ है, और अब वो मदर से सेपरेशन हो रखा है, एंड दैट इज द कंफ्लिक्ट वी आर गेटिंग ओवर हियर। दो वाइफ इज देयर बट शी इज ऑलवेज ऑन द फोन चिट चैटिंग विद अदर्स। दिस कंप्लेंट अगेन कम्स द अदर कंप्लेंट, कि अभी तक मदर की एब्सेंस थी, सिस्टर्स का कोई रोल नहीं प्ले हुआ, एंड वाइफ का क्या है, वाइफ इज देयर बट शी इज ऑलवेज ऑन द फोन चिट चैटिंग विद अदर्स। She never helps me the way my mother does. Narrates an incident that I will about to tell you. Now every burden is on me, whether it is of business or of house. अब मदर नहीं है, वाइफ इज ऑलवेज chit chatting on the phone, seeing the reels and all those things. Now everything is on me. Now the narration he gives of the incident is कि when he have to came to me in the morning for the appointment, तो उसने सुबह क्या बोला कि मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आप मेरे साथ चलो, थोड़ी देर शॉप पे बैठ जाना, मेरा अपॉइंटमेंट है 10 o'clock का, मैं डॉक्टर से मिलके आ जाऊंगा। तो उसने बड़ी लंबी और गहरी सांस लेके कहा, ओके, आई विल गो। कहता है डैड इक्स मी अलॉट। मैंने आपको कहा साथ चलो, तो आप सीधा बोल दो हाँ मैं चलूंगी। ये पेशेंट की परसेप्शन है कि उसकी वाइफ उसको कैसे डील कर रही है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट, अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इसी पॉइंट को, हम पेशेंट की फीलिंग देख रहे हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में हमने ये भी देखना है कि पेशेंट ने उसको सुबह कहा कि भाई मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मदर इन लॉ इज नॉट देयर, घर पे और भी बहुत सारे काम होंगे। सुबह आपने उसको आधा घंटा पहले बोल दिया कि यू हैव टू कम विद मी, हाउ शी विल मैनेज। देयर मस्ट बी सम मेड्स, किसी ने आना है, हेल्पिंग हैंड है, देयर कुड बी नंबर ऑफ थिंग्स। तो वो इतनी गहरी सांस मजबूरी में ही आपके साथ जाएगी। इफ यू वांट समवन टू अकम्पनी यू, आप एक दिन पहले उसे बताते, सो दैट शी कैन मैनेज द हाउस होल्ड जॉब अकॉर्डिंगली, कि वो आपके लिए टाइम निकाल लेती। बट इसको ये लगा कि उसने बड़ी लंबी और गहरी सांस लेके मुझे कहा, ओके, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट द वे। आप ऐसे थोड़ी ना हस्बैंड के साथ कर सकते हो। दिस इज दिस वाज हिज एक्सप्रेशंस, कि वाइफ ने ऐसे क्यों बोला, सीधा क्यों नहीं कहा कि ठीक है मैं चलती हूँ आपके साथ। तो दिस आई यूजली बिकम फ्यूरियस, ऐसा कोई भी बात होती है, आई यूजली बिकम फ्यूरियस, इवन रेजेस माय वॉइस टू हर, बट लेटर फील्स दैट आई शुडंट डू दैट, इट्स हर नेचर, आई कैनॉट चेंज दैट। मैं बोल भी देता हूँ, लड़ भी पड़ता हूँ, काफी खुंदक में भी आ जाता हूँ, बट फिर मुझे लगता है उसने चेंज नहीं होना। नाउ वी हैव टू सी कि वो राइट है या इसकी डिमांड ज्यादा है, कि वो चेंज नहीं होना। व्हाट्स दैट द फील। I always wonder that for the whole day you are at the home, so at least cook the way I want. Sometimes I even cook for myself. सर वो सारा दिन घर पे होती है, उससे सिर्फ खाना ही बनाना है। मैं सुबह खा के जाता हूँ, रात को आना, कम से कम मेरी पसंद का खाना तो बना दो। अब आपकी पसंद क्या है, हमें ये चीज समझनी है। वो खाना नहीं बनाती, आपकी पसंद का नहीं बनाती, या आपकी डिमांड्स एक्स्ट्रा हैं, दैट वी हैव टू सी। ये सारी कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट की आ रही हैं वाइफ से, मदर के बाद। When mother was there, she takes care of everything, even manages the finances as well. कि जब तक माँ थी, घूम घाम के अगेन मदर, कि जब तक माँ थी तब तक सब ठीक था, और शी इज देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। Earlier, there was lot of anger in me. I even throw or break things as well. But now I have changed. जैसे इसने पहले बोला यहाँ पे कि today's I usually become furious and things it irks me. It means कि मुझे गुस्सा आता है और छोटी छोटी बातों पे आ जाता है, मैं चीजें भी फेंक देता हूँ। बट अब मैंने वो कम कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं तोड़ूंगा तो नहीं भी तो मुझे ही बनानी पड़ेंगी। My mother was suffering from cancer. My sister used to accompany her for the treatment. Even at worst of her health, she always encourages us to do good, perform good, and tries to support her. So उनकी इतनी तबीयत खराब थी ना, सिस्टर लेके जाती थी, फिर भी वो बेचारी हमारा ध्यान रखती थी, जितनी हो सकती थी हमारी हेल्प करती थी। उन्होंने हमारा खूब ध्यान रखा है। In this whole case, I found one thing very striking, that there is nowhere mentioning of the father. Then I asked about him. अब यहाँ पे वो फादर वाली स्टोरी आती है कि इस पूरी पिक्चर में फादर कहाँ पे है, और फादर है नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है।
ये चीजें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आनी चाहिए कि हमें कंफ्लिक्ट रिजॉल्विंग के अंदर जाना है, तो कंफ्लिक्ट्स कहाँ पे ढूंढने हैं हमने। माई फादर इज ए वेरी ऑब्स्टिनेट एंड abusive person. Though my mother was very sincere person, still he used to quarrel with her a lot. तो फादर बहुत जिद्दी थे, बहुत गालियां निकालते थे, बहुत अब्यूसिव थे। मेरी मदर ने हर चीज का ध्यान रखा, पूरे घर का, हमारा, हमारे स्कूल का, हमारी कोचिंग का, हमारी स्टडीज का। फिर भी पता नहीं क्यों वो उनसे लड़ते रहते थे। एज आई टोल्ड यू डैट आई एम ए बिट एग्रेसिव पर्सन, आई ट्राई टू एनालाइज डैट व्हाई आई रिमेन सो। फादर को उसने एक लाइन में कंसाइज कर दिया। मदर के लिए इतनी सारी चीजें, वाइफ के लिए इतनी सारी चीजें, सिस्टर दो जगह, वन इज नो मोर, द अदर वन, उस वो मदर को लेके गई, उसके साथ भी इतना रिलेशन नहीं है। बट इन रिलेशन जिसके साथ पेशेंट है, पेशेंट इज टॉकिंग अबाउट मदर एंड पेशेंट इज टॉकिंग अबाउट हर वाइफ। As I told you that I am a bit aggressive person, I try to analyze that why I remain so. I always tell my kids to study well, as our relatives were quite rich. My mother used to took tuition to raise us. तो मैं हमेशा, गुस्सा मेरे को रहता है, लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि आप अच्छा पढ़ा करो, आपने अच्छा करना है। हमारे रिलेटिव ना बहुत अमीर थे, देवर क्वाइट रिच, बट मेरी मदर ट्यूशन लिया करती थी। आप अच्छे, बहुत सारे लोगों के जो रिलेटिव हैं वो रिच होते हैं। तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट कहाँ रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड माय मदर टेक ट्यूशंस। ठीक है, अगर आपको फाइनेंशियली आप वीक हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ सकता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, दैट वी हैव टू सी। सो दिस इज इन शॉर्ट द स्टोरी ऑफ द केस, की ये केस कैसे था। मैम, डू वी नीड टू टेक इनपुट्स और आई गो विद द केस? Okay, I will go with the case. So, how I analyze with this case? So, the analysis is, the main point is absence of mother. This is the primary point. Second point is feeling of neglect from the wife. वो निग्लेक्ट फील कर रहा है, वाइफ कर रही है या नहीं कर रही, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइफ उसको खाना तो बना के दे रही है, वो खाना लेके भी आ रहा है, बट उसकी नीड है कि मुझे ऐसा चाहिए। बर्डन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर डेथ ऑफ मदर, nowhere mentioning of father plus abuse. Egocentric person but thinks why he is behaving in such a manner. This is in short how to analyze a case, how to summarize a case, कि हमें जहाँ पे पिन पॉइंट करना है वहां पे हमें मदर और वाइफ का चेक चेक करना है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके ऊपर आ रही है हमने उन पॉइंट्स पे देखना है। तो द रेमेडी प्रिस्क्राइब वाज Oromio neonatum, and the rubric taken were ailment from death of loved ones, discord between parents, domination, forsaken feeling, neglected, and introspection. All these rubrics are self-explanatory, and I will explain it later on as well. So remedy is Oromio neonatum, AMN or Orom MN. So the primary part in this remedy and in this case is everything is being related to the mother. Mother is everything to this patient. So what is mother? We have to analyze what is the mother figure. So mother is a protector, friend, advocate, confidant, supporter, encourager, discipliner, teacher, cheerleader, and the list goes on. मदर आपको हर चीज प्रोवाइड करती है। आपकी फर्स्ट स्कूलिंग, आपकी फर्स्ट एजुकेशन मदर से आती है, आपका फर्स्ट नरिशमेंट मदर से आता है। तो फॉर एवरीवन मदर इज एवरीथिंग। बहुत कम लोग होते हैं जो मदर के बिना, नॉट टॉकिंग अबाउट द बहुत कम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ओनली। ये पर्सन का क्या है सीन चल रहा है, ये पर्सन इज नॉट एबल टू सरवाइव विदाउट द मदर। मदर इज नो मोर, एंड यहीं पे हमें इसका सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट दिखता है कि बिकॉज ऑफ सेपरेशन स्किन के अंदर अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अफेक्शन केयर वो एब्सेंट हो रही है जो उसको मदर से मिल रही थी, एंड ही इज गेटिंग द प्रॉब्लम। Mother is always there for you, supporting them through everything life throws their way, loving your child unconditionally, having your patient tested round the clock, providing safe and secure environment, guiding your child towards their goals and values. These are all the things that a mother provide
unconditionally, basically. Seeing the world and all its possibilities through your children's eyes. Working tirelessly to ensure your children are equipped with knowledge and skills they need to succeed as adults later in their life. अब लेटर इन देयर लाइफ में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मदर को भी चाइल्ड को इंडिपेंडेंट छोड़ना पड़ता है। अब मदर चाइल्ड को इंडिपेंडेंट छोड़ रही है बट चाइल्ड डिपेंडेंट हो रहा है। देयर आर सर्टेन थिंग्स कि चाइल्ड कितना मैच्योर हुआ है, कितना ग्रोन अप हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पे पेशेंट को मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि मदर के साथ सेपरेट होने से तो कहीं ना कहीं चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा। All that I am or hope to be, I owe to my mother. This is a saying by Abraham Lincoln. So this shows the value of mother basically. अब आई विल द पीपीटी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अब इसके अंदर देखिए, अब वो बच्चा है बट मदर की सिर्फ फिगर है और वो प्रज्यूम कर रहा है कि ही इज विद मदर। तो कितना एक इमोशनल, कितना टची एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ मदर किसी के लिए हो सकता है। अटैच मदर टू चिल्ड्रन आर अटैच टू द, तो aurum neonatum, all these children are very much attached to their mother. अब चिल्ड्रन के अंदर हम चिल्ड्रन तो हैं ही हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन अगर बड़ा भी अपनी मदर के साथ इतना अटैच्ड है तो डेट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब द वन हु नीड समवन टू सपोर्ट केयर एंड द अदर थिंग्स। तो उसका क्या कहना था ना कि मदर हर चीज घर पे देख रही है, मदर है तो मैं टेंशन फ्री हूँ। तो ही इज एक्टिंग एज ए चाइल्ड कि मदर है तो मेरा हाँ सब कुछ हो जाएगा। शी इज द प्रोटेक्टर, शी इज द प्रोवाइडर, शी इज द एवरीवन ओवर देयर। एलिमेंट फ्रॉम डेथ, पेरेंट्स और फ्रेंड्स और ऑफ मदर। अब इसके अंदर पेरेंट्स और फ्रेंड्स ऑफ मदर, मदर फिगर कोई भी हो सकता है। मदर फिगर आपका फादर भी आपके लिए मदर फिगर हो सकता है और आपके फ्रेंड्स भी आपके लिए मदर फिगर हो सकते हैं। मदर फिगर से हमारा मतलब है यहाँ पे कि द वन हु गिव्स प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन एंड आइडेंटिटी टू यू। कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, उनकी पेरेंट्स के साथ इतनी अच्छी अटैचमेंट नहीं है, बट फ्रेंड्स उनको बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत अच्छा लाइफ में सपोर्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो वो फ्रेंड्स फिर उनके लिए मदर का रोल प्ले करेंगे। एक वाइफ भी अपने हस्बैंड के लिए मदर का रोल प्ले कर सकती है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द परसेप्शन, हाउ द पेशेंट इज परसीविंग एंड टेकिंग द थिंग्स एंड इन व्हाट वे ही इज ट्राइंग टू एनालाइज दैट। सो दिस इज एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड ऑफ मदर। डिल्यूजन डेड मदर इज हिज। अब ये जो रेमेडी है ये एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ मदर में भी है, डिल्यूजन डेड मदर में भी है। अब एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ मदर में तो क्लियर कट है कि मदर अवेलेबल नहीं है, एंड डिल्यूजन के अंदर वी प्रेज्यूम कि मदर अवेलेबल भी है बट प्रेजेंट नहीं है। अवेलेबल है, प्रेजेंट नहीं है इन द सेंस शी माइट बी द वर्किंग वूमेन, कि उसने उतना केयर और इतना सपोर्ट पेशेंट को नहीं दिया या पर्सन को प्रोवाइड नहीं कराया। माइट बी शी इज अ वेरी हैवीली सोशलाइट, उसको किटीज, बाहर घूमना, शॉपिंग करना, ये सारी चीजें पसंद है। बच्चे जो हैं वो क्रच में पढ़ रहे हैं। तो मदर होते हुए भी डेड है वहां पे, क्योंकि मदर सिर्फ वहां पे एक पर्सन की तरह प्रेजेंट है, एक रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट नहीं हो रही है, एक न्यूट्रिशन एंड केयर गिवर की तरह प्रेजेंट नहीं हो रही है। तो पेशेंट के लिए वो मदर डेड हो जाएगी फिर वहां पे। It doesn't matter how old a son is, even when he is big and strong, he will always be a little boy to his mother. तो मदर के साथ आपकी अटैचमेंट हमेशा रहती ही रहती है। डिल्यूजन फॉर सेकंड इज, अब उसको लगता है कि मुझे छोड़ दिया गया है। डिल्यूजन निग्लेक्टेड, ही और शी इज निग्लेक्टेड। अब जब तक मदर थी उसकी टेक केयर हो रही थी। नाउ एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ मदर और फ्रेंड्स और पेरेंट्स, उसके बाद क्या आया है, वाइफ। वाइफ का रोल कहाँ पे होता है, अब इसको लग रहा है कि ही शी इज निग्लेक्टेड, ये इसको फील हो रहा है कि उसको निग्लेक्ट किया जा रहा है। इट इज नॉट द वे कि उसकी वाइफ उसके लिए कुक नहीं कर रही, उसके बच्चे, उसने नहीं कहा कि मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे, मेरे मुताबिक नहीं हो रहा, मैं सारा दिन ऑफिस में शॉप पे रहता हूँ तो मेरे लिए दो अच्छी रोटी नहीं बनती। रोटी तो बन रही है ना, हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो तो आपके लिए अच्छे की डेफिनेशन डिफरेंट हो जाएगी। तो उसको लग रहा है कि जो केयर, जिस लेवल का केयर, जिस लेवल का सपोर्ट मेरी मदर प्रोवाइड कर रही थी, मेरी वाइफ नहीं कर रही। वाइफ इज समवेयर निग्लेक्टिंग मी एंड ही, और वो उस कहीं ना कहीं वाइफ के अंदर मदर को ढूंढ रहा है। जैसे उसने वो इंसिडेंट नरेट किया कि आई टोल्ड
माय वाइफ कि सुबह 7 चलो, और बहुत लंबी और गहरी सांस लेके अच्छा मैं चलती हूँ। आपको पहले बताना चाहिए था, वहां पे उसको नेग्लेक्ट की फील आएंगे और वो इरिटेट हो रहा है कि माय वाइफ इज नॉट गिविंग मी और प्रोवाइडिंग मी द सपोर्ट आई वांट, एंड आई वांट द सपोर्ट द वे माय मदर यूज्ड टू गिव मी। उसको उस तरह का सपोर्ट चाहिए जो वो अपनी वाइफ से सीख कर रहा है, और उस टाइप का सपोर्ट के लिए मदर इज नॉट वर्किंग, शी इज ओवर देयर, वाइफ इज ऑल्सो ओवर देयर। तो वहां पे दो लोग हैं घर को हैंडल करने के लिए, तो मदर के पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा आपको सपोर्ट करने के लिए, बट अब वाइफ के पास नहीं है, शी इज द अलोन वन। तो इसलिए पेशेंट को ये फीलिंग आ रही है कि मैं जो सपोर्ट वाइफ से चाह रहा हूँ, जैसे मेरी मदर मुझे दिया करती थी, वाइफ मुझे नहीं दे रही है। तो उसको फीलिंग क्या आती है, दैट आई एम बीइंग निग्लेक्टेड। फॉर सेकंड फीलिंग, डिल्यूजन भी है एंड फॉर सेकंड फीलिंग भी है। फॉर सेकंड फीलिंग ये उसकी फीलिंग है, ही फील्स कि हाँ मुझे अलग, अकेला किया गया है, अबेंडन किया गया है। और डिल्यूजन के अंदर उसको किया जाए या ना किया जाए, बट ही फील्स, यहाँ पे प्रेजेंस है कि हाँ मैं अलग हो गया हूँ। और वहां पे लोगों के प्रेजेंट होते हुए भी उसको सिर्फ एक फीलिंग आती है कि यस आई हैव बीन लेफ्ट अलोन। So the core feeling comes in Oromo is orphans। ये एक न्यू रूब्रिक अभी पाइल अप हुआ है, ऑर्फेन्स मींस अनाथ। कि अब उसकी फादर प्रेजेंट है, फादर एक्सपायर नहीं है बट पिक्चर में नहीं है, ऑब्स्टिनेट है, अब्यूसिव है, तो उसने खुद ही फादर को तो पहले हटा दिया वहां से। मदर थी केयर गिवर, प्रोवाइडर, नोरिशमेंट गिवर थी, अब मदर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पे आ गई हैं, और वाइफ उस वे में हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रही, तो ही इज फीलिंग लाइक एन ऑर्फन। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ forsaken feeling and being orphan। So what is neglected? Neglected is not receiving enough care or attention, a complete lack of necessary care and concern by loved ones। कि मुझे मुझे जिस हिसाब से अटेंशन चाहिए, सामने वाला अटेंशन दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इंटर डिल्यूजन। कि सामने वाला आपको अटेंशन केयर दे रहा है, लेकिन नॉट रिसीविंग एनफ केयर एंड अटेंशन, जिस हिसाब से मुझे चाहिए आप मुझे प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो। सो और देयर कुड बी कंप्लीट लैक ऑफ नेसेसरी केयर एंड कंसर्न बाय लव्ड वन, जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो। Forsaken. A forsaken individual is someone who has been left by someone they need or depend upon, especially when they are in distress। मैं अगर ऑफिस में था, मैं अगर शोरूम में शॉप पे था, तो माई मदर वॉज देयर टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स, शी विल टेक द डिसीजन, शी विल मैनेज द फाइनेंसेस, बट शी इज नाउ no more, I have been left alone, I am now in a forsaken state, my wife is not looking after me the way she does। इट मीन्स कि अभी अबेंडन हो गया है। अगर हम अबेंडन रूप भी देखेंगे तो फोर सेकंड में ही मिलता है हमें क्रॉस रेफरेंस में। अबेंडन से अगर हम समझें, द अबेंडन हाउस, द अबेंडन शिप, जिसको छोड़ दिया गया है, जिसकी टेक केयर नहीं हो रही है, उसको उसके हालात पे छोड़ दिया है हमने। तो दिस इज द फोर सेकंड फीलिंग कि अब मेरी मदर नहीं है, तो मैं अपने हालात पे हूँ, जैसी केयर मैं चाह रहा हूँ वैसी केयर मुझे नहीं मिल रही। तो नीड फॉर केयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड द कनेक्शन इन दिस रेमेडी। The word forsake means to leave someone or something without intending to return। Now comes the orphan। ये जो हमने बेसिक रूब्रिक देखे हैं, a child deprived by death of वन यूजली वन और यूजली बोथ पेरेंट्स, की एक या दोनों पेरेंट्स नहीं हैं, अवेलेबल हैं, बट पेशेंट को वो केयर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, देन ही गोज इनटू द फीलिंग ऑफ ऑर्फन। वन डिप्राइव्ड ऑफ सम प्रोटेक्टिव और एडवांटेज एंड केयर, प्रोटेक्शन भी नहीं है, केयर भी नहीं है, और जो बेनिफिट मिलता था मदर का, शी इज द बैकबोन, शी इज द, उसने क्या वर्ड यूज किया था, शी इज माई हेल्पिंग हैंड, कि सब कुछ वो थी, अब वही पर्सन नहीं है, तो अब मेरे लिए एक अनाथ वाली स्टेट आ गई है। आई एम इन द स्टेट, इन द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑर्फन। अब इसकी कुछ एलिमेंट्स हम देखते हैं। इसमें देखिए एलिमेंट्स हमें कैसे मिलती हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, पेरेंट और फ्रेंड्स और ऑफ मदर, सारी चीजें हैं इसके अंदर, पेरेंट्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, मदर एंड लव्ड वंस। ये सारी चीजें हमें कंसाइज करनी है इन द फीलिंग ऑफ बीइंग मदर, कि जो उसको केयर और नॉरिशमेंट जहां से प्रोवाइड हो रहा था, वो सारे लोग, पेरेंट्स भी केयर और नॉरिशमेंट दे सकते हैं, फ्रेंड्स भी दे सकते हैं, लव्ड वंस भी दे सकते हैं, कि वो सारे लोग अब अवेलेबल नहीं है। A from element from being deceived, element from friendship deceived, deceive हमेशा अपनों से ही होता है। element from being neglected by one's mother,
इसमें मदर से भी निग्लेक्ट हो सकता है, जहां पे डिल्यूजन है कि मदर इज बीइंग डेड। एलिमेंट्स आल्सो एंड डिल्यूजन आल्सो। एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन फ्रेंड्स। पेरेंट्स के अंदर अगर डिस्कॉर्ड होगा तो पेरेंट्स बच्चे को वो नॉरिशमेंट, वो प्रोटेक्शन, वो सेफ्टी, वो सेफ एनवायरनमेंट, हेल्दी जोन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। इसने कहा कि माई फादर इज अब्यूसिव वन एंड ही यूज टू कॉल विद माई मदर, दो माई मदर इज अ वेरी सिंसियर पर्सन। तो कहीं ना कहीं ही मस्ट हैव सीन ऑल दो डिस्कॉर्ड्स। Discourse is basically initially where they are chords and now they are not in good rapport with each other. That is the discourse basically. Now, being orphan, agar if someone is orphan, तो orphan arises some states in a patient. In what way? Like if we see the attributes of orphan, attributes in the sense ki the similar sounding emotions in a particular person, ki how he feels or behaves in that situation. Being orphan gives us three things in this remedy particularly. There are a number of remedies in orphan: precocity, pleasing, and seriousness. Being orphan, when you are deprived of love, care, affection, and protection, you are being orphan. You become precautious कि मुझे अब अपना ध्यान कैसे रखना है. You have to grow up. At times you start pleasing others कि आपको वो nourishment और वो care मिल जाए somehow from someone, and you become serious in searching for all these parameters. So orphan in this remedy will give us precocity, pleasing desire to please others, and seriousness. तो ऑर्फन्स की वजह से हमें ये तीन एट्रीब्यूट इस रेमेडी के अंदर हमें मिलते हैं. बीइंग ऑर्फन मींस इफ यू गो सी बाय द पिक्चर कि इफ पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल, द यंगर वन इज टेकिंग केयर ऑफ दिस लिटिल वन. तो उसको मैच्योर बनना पड़ेगा, उसको बड़ापन दिखाना पड़ेगा. सो बीइंग ऑर्फन इज बिकमिंग मैच्योर. दिस इज प्रिकॉसिटी. बिकमिंग रिजर्व्ड, प्लेइंग अवर्जन टू प्ले. देयर इज आल्सो रुब्रिक प्लेइंग अवर्जन टू प्ले चिल्ड्रन इन. चिल्ड्रन आर बॉर्न टू प्ले, कि बच्चे हैं तो उनको खेलना ही खेलना है. बट यहाँ पे बच्चे को भी अगर खेलने में इश्यूज आ रहे हैं, वो खेलना नहीं चाह रहे, तो दिस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिस्क्रिप्शन. इन डिफरेंस टू प्लेजर, एंग्जाइटी, फैमिली अबाउट हिज, केयर्स, फुल ऑफ. ऑर्फन होते ही ये सारे पैरामीटर्स एड ऑन होना शुरू हो जाएंगे इन दिस रेमेडी. एंड एलिमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी अनयूजुअल. तो इसके अंदर अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अनयूजुअल क्या हुआ कि मदर जो सारी चीजों का टेक केयर कर रही थी, सारी चीजों का ध्यान रख रही थी, सब कुछ देख रही थी, नाउ शी सडनली नो मोर, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर आ गई. दिस इज अनयूजुअल फॉर मी. आई एम नॉट यूज टू दिस. आई एम यूज टू just getting my breakfast from the house and going to my shop and taking care of things over there, and no more concern कि बैक एंड पे क्या चल रहा है. बट अब मुझे फ्रंट भी देखना है और मुझे बैक एंड को भी हैंडल करना है. तो सडनली मैं कैसे हैंडल करूंगा, क्योंकि वाइफ की तरफ से तो निग्लेक्ट फील हो रहा है, और मुझे अब सारा कुछ करना, जो केयर प्रोवाइडर था वो अवेलेबल नहीं है. तो इसके अंदर फीलिंग क्या आएगा, फीलिंग ऑफ unusual or responsibility. But now because this is aurum और नेटोनेटम, means aurum भी है, नेट्रम भी है, और मुरेटिकम एलिमेंट भी है. तो aurum उसको झुकने नहीं देगा. कहीं ना कहीं वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, he will take those responsibilities and land up into responsibility taking too seriously. वो उन responsibilities को लेगा. Some part is attached with the case, I have shown the rubric, and some part is a general description of the remedy. So he will take the responsibility too seriously. Now, in this responsibility, he has anxiety, family about his anxiety, others for care, worries full of. वो फिर हर चीज की एंजाइटी भी रखेगा. अगर मैं शॉप पे हूँ, बिजनेस में हूँ, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट गोइंग ऑन एट द डोमेस्टिक फ्रंट, ही इज बीइंग एंशियस फॉर दैट एंड विल टेक केयर ऑफ थिंग्स. वो एंजाइटी में भी रहेगा, वो केयर्स में भी रहेगा. बिकॉज कि अब देखिए इसके अंदर देयर आर फ्यू थिंग्स. ये जो मैंने रुब्रिक्स का चैनल बनाया है या थिंग्स आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस आर फ्रॉम द क्लिनिकल एक्सपीरियंस, कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं. औरम के अंदर ये सारी चीजें क्यों आती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों ले रहा है, बिकॉज फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स, सस्पिशियस टॉकिंग अबाउट हिम दैट पीपल आर. अब ये चीजें क्या शो करते हैं कि आई एम द
एल्डर वन मुझे चीजों का ध्यान रखता है, आई एम द ऑर्फन वन राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्टेज, इफ आई विल नॉट टेक केयर ऑफ द थिंग्स देन व्हाट पीपल विल से। तो यहाँ पे ओपिनियन मैटर हो जाएगा, एंड ही विल ट्राई टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियॉन्ड प्रेशर, बियॉन्ड कैपेबिलिटी। यहाँ पे देखिए इमेज के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी शोल्डर से ज्यादा हैं, तो वो बीइंग एन ऑरम एलिमेंट इन दिस रेमेडी, वो जरूरत से ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली ही विल लैंड अप इनटू द प्रॉब्लम। अब औरम के अंदर क्या होगा कि इसको चीजें परफॉर्म करनी है, फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स, टॉकिंग अबाउट पीपल आर, और ये पीपल कौन है, इसने क्या बोला था, हमारे रिलेटिव्स, रिलेटिव्स बहुत रिच हैं, मेरी मदर ने ट्यूशन दे दे के हमें पाला है। वही चीज कि वो जो रिच रिलेटिव हैं वो फिर इनके बारे में, अब मदर नहीं, इसके बारे में क्या ओपिनियन बनाएंगे कि फादर भी नहीं है, फादर प्रेजेंट है नहीं है, द सेम थिंग, मदर एब्सेंट है, अब ये कैसे हैंडल करेगा, अब हम इसको देखेंगे। तो दीज आर द थिंग्स जो बहुत सारे पेशेंट से इनवेरिएबली हमें मिलती हैं सुनने को, जिसको यहाँ पे कंसाइज किया गया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली लेने का प्रोसेस, उसके पीछे लोगों का ओपिनियन मैटर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, एंड इंडिफरेंस एपैथी रिकवरी अबाउट हिज, ये अपनी ड्यूटीज, केयर, वरीज, एंजाइटीज में इतना इन्वॉल्व हो जाएगा, लोगों के ओपिनियंस को इतने मैटर करेंगे कि इसको अपनी हेल्थ की फिर रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं कैसा हो रहा हूँ, मेरे अंदर क्या हालत हो रही है। इंडिफरेंस टू रिकवरी, अब बीमारी दिख रही है तो दिखने दो, मुझे तो ये सारी चीजें हैंडल करनी है क्योंकि मेरा केयर गिवर और केयर प्रोवाइडर अवेलेबल नहीं है। ऑरम एलिमेंट अगर इसके अंदर ऐड होता तो ऑरम एलिमेंट क्या देता है, बिकॉज ये सब जो रिलेटिव्स इसके हैं, फिर ओपिनियन ऑफ अदर, और जो मेरे रिच रिलेटिव्स हैं, जो सोसाइटी है, वो इसको क्या फ्रॉम द ऑरम एलिमेंट मिलता है, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ, ऑनर वुंडेड, मोटिफिकेशन, बीइंग कॉन, कि भाई इसने कुछ नहीं किया और किया है तो भी उसकी वैल्यू नहीं है। ये सारा ऑरम एलिमेंट इस रेमेडी के अंदर देता है, बट ही इज वेरी एंजाइटी कॉन्शियस, इसके अंदर कंसाइज है, इसीलिए ही ये सारी चीजें करता है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को कहीं लेके जाना है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर नहीं होगा तो द मेन कैरेक्टर ऑफ फोरम इज रिप्रोचिंग वन सेल्फ, मैं ही नहीं कर पाया, मैं ही केपेबल नहीं था, मैंने तो अपने एफर्ट्स बहुत किए बट मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और हम अपने आप को ही रिप्रोच करता है, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा ले लेता है विच इज बियॉन्ड द proportion, beyond the proportion means he is not able to handle that, that's why he is in the element from responsibilities unusual, जरूरत से ज्यादा लेना उसको प्रॉब्लम में क्रिएट कर देता है, एंड ही देन ही रिप्रोचेस वन सेल्फ। एंड बीइंग फ्रॉम द ऑरम एलिमेंट क्या मिलता है उसको, ये रूब्रिक ऑरम के अंदर भी है, डिल्यूजन फेल एवरीथिंग विल, डिल्यूजन फॉरसेकन, हैज लॉस्ट अफेक्शन ऑफ फ्रेंड, इंसल्टेड एंड रॉन्ग डन, मेरी ही गलती है, मैंने ही गलत किया है, मैं ही नहीं कर पाया। तो ये जो अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंदर आती हैं, ये इसको ये एक पैरामीटर देती हैं कि इसने गलत किया है। Now, from the other angle, if you see the netrum element, fear of people, fear of rejection, इसमें पीपल कौन है, वही सोसाइटी के लोग, वही रिलेटिव्स जो पिन पॉइंट करेंगे चीजों को, वही रिच रिलेटिव जो इनको पुअर कहते हैं। तो फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ रिजेक्शन, अवर्जन पर्सन टू सर्टेन, हेट्रेड ऑफ पर्सन हु हैज ऑफेंडेड हिम, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, किल डिजायर, स्ट्रेंजर प्रेजेंस एग्रावेट। तो वो अब रिलेटिव्स नहीं, वो स्ट्रेंजर है, क्योंकि उनमें और स्ट्रेंजर में कोई फर्क नहीं है, केयर गिवर, केयर प्रोवाइडर, नरिशमेंट गिवर नहीं है, तो वो सिर्फ ओपिनियन दे रहे हैं, वो हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ये वाली जो फील और मेयर के अंदर आती है, वो नेट्रम एलिमेंट से हमें मिलती है। मुरेटिकम एलिमेंट क्लोरीन, दैट इज इन द 17th कॉलम, वो हमें क्या देता है, 17th के अंदर स्ट्रक्चर का डिक्लाइन है पूरा, डेस्पेयर, इंडिफरेंस टू रिकवरी, पिटीज हरसेल्फ, सुसाइडल डिस्पोजिशन, सुसाइडल डिस्पोजिशन, पेन फ्रॉम, suicidal disposition, sadness from, pain from we also see in the aurum element, and from the sadness of suicidal disposition, from the sadness come from the natrum element, कि अब कुछ भी नहीं बचा, अब सब कुछ खत्म है, इससे अच्छा तो मुझे कि मेरी क्या हालत हो गई है, अब वो डेस्पेयर में चला जाएगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे बेनिफिट क्या हुआ, मैंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, सब कुछ किया, बट अगर कोई चीज सक्सेस नहीं हुई तो फिर उसको ये चीजें पेन करती हैं, वो इंडिफरेंस में जाएगा, उसको पिटीज होगी कि मैंने अपनी क्या हालत कर ली है।
इन द लेटेस्ट स्टडी, ये सारे वो फेजेस हैं जिसपे पेशेंट हमारे पास आता है। वो डिस्पोनिम में, ऑनर वुंडेड में, रिप्रोचिंग वन सेल्फ के अंदर भी लैंड अप हो सकता है। फॉर सेकंड फीलिंग हमने अभी इसके अंदर देखी ही है। राउंडन वाला फेज केस में नहीं था, बट यूजली केसेस, ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे पेशेंट आपके पास आएगा इन फीलिंग्स, इन इमोशंस को लेकर के। नेट्रम एलिमेंट हमने अभी डिस्कस किया, मुरेटिकम। देन अगर हम इस स्टेज पे भी पेशेंट हमारे पास नहीं आता, या हम उसको क्योर नहीं करते, या डिजीज प्रोग्रेस होती है, तो उसकी साइकी कहाँ उसको लेके जाएगी? इम्बिटर्ड। अब वो खिंचना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे पेशेंट ने भी क्या बोला ना, एक अजीब सा खिज, इरिटेशन रहती है मन में हमेशा। वो एक इम्बिटर्ड फीलिंग है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे वाइफ से वो चीज नहीं मिल पा रही, वो केयर, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो मैं चाह रहा हूँ। तो वो उसके अंदर एक इम्बिटर्डनेस आनी शुरू हो जाएगी। ग्रीफ, आंसरिंग अनेबल टू आंसर व्हेन हर्ट इमोशनली, dwells on past disagreeable occurrences, cheerful death while thinking of, ये सब वो ऑरम एलिमेंट इसके अंदर आपको शो कर रहा है। डेथ डिजायर, थॉट persistent, अनप्लेजेंट सब्जेक्ट हॉन्टेड बाय। तो ये एक स्टेज है जो हम नेक्स्ट लेवल पे फिर जाएंगे। अब अगर हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली अगर हम ऑरम को देखना चाहें, ऑरम योर नेटोनेटम को, तो ऑरम इन row 6, the last one, and the column 11. Neratrum row 3, column 1. Muraticum row 3, column 17. Muraticum जो है that is in the nourishment line. Nourishment and identity. तो इसके अंदर भी issues कहाँ आ रहे हैं? Nourishment के आ रहे हैं. The muraticum element from the 17th column. What is that? That is letting go. अब मैंने चीजों को छोड़ दिया है, अब मैं परवाह नहीं करता हूँ। इसमें पेशेंट ने क्या बोला कि मैं वाइफ से इस पर्टिकुलर वे में खाना चाहता हूँ, खाना बनवाना चाहता हूँ, वो नहीं बनाती। एट टाइम्स आई कुक माई सेल्फ। फिर अब मैंने छोड़ दिया, मैं खुद भी बना लेता हूँ। This is come from the chlorine, the muriaticum element. From the aurum element is responsibilities, leadership, taking pressure beyond endurance. वो चीजें इसको क्या देती हैं? ऑरम एलिमेंट इसे देगा इसका ईगो। म्यूरेटिकम एलिमेंट देगा डिग्निफाइड। ऑरम योर नेटम, नेटम इज ऑल्सो इन द रूब्रिक डिग्निफाइड, वहां से इसको डिग्निटी मिलती है। और जो क्लोरीन एलिमेंट है वहां से इसको क्या मिलता है? वहां से इसको मिलता है कि बीइंग डिसीव, कि वाइफ से जो मैं चीज चाह रहा था उसने वो प्रोवाइड नहीं करी, कि इन ए सेंस मुझे वहां से धोखा मिला। वो चीज उसे क्या देती है? वो चीज उसे ग्रीफ देती है। तो अगर हम प्रोडक्ट टेबल के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करें, तो जो ऑरम है फ्रॉम द सिक्स्थ रो, इट इज द हैवियर वन। तो उसके अंदर ईगो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज, कि हाँ अब मैं ऑर्फन हूँ, नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स, ये हमें मिलेगा। फ्रॉम द थर्ड रो, फ्रॉम द नेट्रम लाइन, नेट्रम के अंदर ही आपको लास्ट में क्लोरीन मिलता है, दैट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज फ्रॉम द राइट हैंड साइड। मीन वेरी इनिशियल लेवल, वेरी इनिशियल लेवल। तो केयर और आइडेंटिटी की बात आएगी ही आएगी, कंसाइंस की बात आएगी ही आएगी उसके अंदर। एंड द लास्ट वन इज द बिट्रे, द लेटिंग गो ऑफ द क्लोरीन। अब इन एन अदर वे अगर हम देखें ऑरोमियो नेटोनेटम को, तो ईगोटी, इसके अंदर हमें क्या मिलता है? ईगोटिज्म, हॉटी, हीडलेस, इम्बिटर्ड, जेलेसी, एनवी, बूस्टर, इम्प्रोविडेंट, अब्यूसिव, कर्सिंग, ये सारे करेक्टर्स हमें एएमएन के अंदर मिलते हैं। अब कहीं ना कहीं जो इतना इगोस्टिक होगा, अगर हम इसका चाइल्डहुड देखें, इसने कहा माई फादर वॉज वेरी अब्यूसिव टुवर्ड्स द मदर, जहां से हमें डिस्कॉर्ड मिलता है, बट इसने कहा कि वो डोमिनेटिंग बहुत थे। तो अब अगर कोई बच्चा इतना इगोस्टिक, अगर यंग एज में देखे, इतना इगोस्टिक, इतना हॉटी, इतना अब्यूसिव कर्सिंग है, तो उसको आपको डोमिनेट करके ही कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ही गेट एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, एंड एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। मदर की डेथ के बाद तो उसको सोरियासिस काफी ज्यादा एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया। बट इनिशियल पैचेस, जो स्मॉल पैचेस थे, वो उसको काफी अर्ली स्टेजेस के ऊपर आने शुरू हो गए थे। And on the other hand, the nature autoimmunity gives us the expressions of mildness, affectionate, yielding, sentimental, fastidious, industrious, careful of, attached strongly to others, कि ये सारे इमोशंस ही हैं जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें वो पेशेंट करता है। तो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट ऑरोम्योर नेटोनेट्रम फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। I will show you the pics of the patient.
if we look into this particular picture, there are some previous patches, some resolved previous patches, some marks are there after the dominant system of medication, and new lesions are these one. Whenever you give the medication, because usually those are the suppressive one, these lesions are bound to redevelop. Now, in the management of the psoriasis, few very important points to be taken care of. Whenever you give a Simlimum or the conflict resolving medication, these patches will come back. This is again in the leg. These are the latest one, and the redness, if we see on the back end, is the resolved spots from the dominant system of medication. Now see this pick and this pick. The latest one start resolving, but the previous one erupts because they were the suppressed one. Now see this picture. Previous one they are gone, new one they are gone, but previous one the major lesions they re-erupt. These lesions which are faded are re-erupted. Few are on the back, but at this stage we are not supposed to change the remedy. We are not supposed to change the potency. This will happen. ये होगा ही होगा. Psoriasis के अंदर एक बहुत prominent चीज है. Being from an autoimmune zoner, the way psoriasis heals is right now patient is having the patches is of intensity say 100. After giving the Simlimum, they will reduce down to 20, come to 5, come to 10. Whatever is the percentage, patient mentally will feel very much relaxed. But after some time, they will again re-erupt and go up to a level of say initially the patient came to us at a level of 100. Now the patient will remain at a level of 60. The intensity will be less, but they will come back. No need to change the medication, no need to change, repeat the dose. Again, after some time, the spots will fade away and patient will feel very much relaxed. The intensity, the distress patient feel after the re-eruption is not much. If it is much, if it is exaggerated, you can repeat the dose, you can increase the potency, otherwise no need. Again, patient will feel very much relaxed. After some time, after some months, again it will re-erupt, but initially it was 100, then goes to 60, then it will come to 20. These are the roughly parameters what I'm trying to say. And again he will get relaxed mentally and physically, say he will come to the 5 and then see the 0. The disease will not come back. But this phase usually happens. In my last 20-24 year of practice, I have cured many cases of psoriasis. जो और भी पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, साथ भी आते हैं, दे नेवर एवर कम बैक, की रिपीट नहीं हुआ. बट उसका प्रोसेस यही है. सोरेसिस ऐसा नहीं होगा कि हुआ एंड सडनली जीरो. उसका कुछ ना कुछ पार्ट वापस जरूर आएगा और वो उसके बाद ही जीरो होगा. और वापस रीएरप्ट आने पे हमें मेडिसिन एंड डोजेज चेंज नहीं करनी, अनलेस एंड अनटिल उसकी साइकी में इश्यूज या अब्रेशंस हमें नहीं मिलते या साइकोलॉजिकली वो ज्यादा एग्रेवेटेड फील नहीं करता. सेम इसकी लेग्स पे भी ये स्पॉट्स हैं. ये जो रेडनेस है जो आपको इनिशियली स्पॉट दिखाया, ये स्पॉट था, द बैक एंड वाज हील्ड वन. सेम इन दिस एरिया, this is re-erupted and again this whole area will get re-erupted जो यहाँ पे resolve हो चुका था, and after the medication they resolved. This is the just blackening जो with time, with application of coconut oil or mustard oil fade off हो जाएगी, and now this is totally clean. So this is what we have to say in psoriasis, कि there has some comeback from the initial phase of the disease, and we are not supposed to change the medication or increase the dose unless and until psychologically, mentally he is not feeling disturbed by that. Number of times patient came with the say, सर बहुत ईचिंग थी, बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत शेड ऑफ होता है, बट आफ्टर द मेडिकेशन प्रॉब्लम माई ईचिंग हैज गो हे वायर. बहुत ज़्यादा ईचिंग है, बहुत ज़्यादा शेडिंग हो रही है, बट आई स्लेप्ट वेरी वेल.
पिछले 5-6 years में मैं इतना काम, इतना पीसफुल नहीं सोया हूँ। तो दिस इज जनरली हिज जनरलिटीज आर गेटिंग बेटर। सो अगर उसको इचिंग बढ़ भी रहा है, उसके स्केलिंग की शेडिंग हो भी रही है, still we are not supposed to change the medication because mentally he is feeling very much relaxed, and over a period of time the things will sort out. And in this particular case, after giving orum or netronatum, what the patient says in the follow up, now I have calmed down, अब मुझे उतना गुस्सा नहीं आ रहा, now I have accepted कि जो आएगा उसको जाना तो है ही है। तो जो मदर कॉन्फ्लिक्ट जो जो उसको एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था, नाउ द एक्सेप्टेंस केम। एंड व्हाट अबाउट द वाइफ? यस, शी इज डूइंग द थिंग्स, शी इज मैनेजिंग द हाउस, वो तो वो पहले भी मैनेज कर रही थी। बट यू आर इन द कॉन्फ्लिक्ट, तो उसकी मैनेजमेंट आपको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हर एक का मैनेज करने का तरीका अलग होगा। तो दिस इज द मेंटल चेंज दैट ही हैज एक्सेप्टेड द सिचुएशन, कि दैट यस, वाइफ इज मदर इज नो मोर, बट वाइफ इज हैंडलिंग द थिंग्स। एंड रिसेंटली ही बॉट ए न्यू हाउस in the nearby area, and on the last page what he said, my father is very happy with my growth, कि बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने इतना बड़ा घर ले लिया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सडनली जो फादर अब्यूसिव थे, दिस इज द ब्यूटी, कि आपके कंफ्लिक्ट रिजॉल्व होने शुरू होते हैं। फादर भी कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट में होंगे, उनका अब्यूसिव नेचर था या नहीं था, या डिस्कॉर्ड्स थे, पेशेंट उसको कैसे परसीव कर रहा है। नाउ द सेम फादर जिसको अब्यूसिव और ऑब्स्टिनेट बोला गया था, नाउ दैट फादर प्रेजेस द पेशेंट, कि हाँ अब मेरा फादर के साथ रिलेशन बड़ा अच्छा है, वो एट टाइम्स मेरे साथ शॉप पे भी आना शुरू हो गए हैं। सो दिस इज what we usually get after the resolving of the conflict. So this is in short from my side. Thank you so much, sir, for this wonderful session and this beautifully presented case of psoriasis. Now, Thank I you. would like to request from the audience, if you have any queries, you can put your question in the question and answer box. So, sir, many of the attendees are complimenting, like Dr. Payan Rao is saying, very interesting and informative webinar. Yes, ma'am. There Devanshi is Soni there is saying one very thing well I presented, would well definitely explained. like to Thank you so answer. Ki what to do when the so patches she's also reappear? asking, when the patches reappear, do we Yes, need to yes, repeat the medicine at that time or we have to just wait and watch its action? yes. We need to wait and watch, because patches are supposed to come back, but we will have to see कि with the coming back of the patches, the psyche, the mentality of the patient is same or not. If the patient is feeling relaxed, feeling calm, feeling composed, but patches are back, no need to change the medication. But if patches are back and he is a bit distressed, you can repeat the dose. And if he is very much distressed, you can increase the potency. Otherwise, no need to change the medication in psoriasis. So, sir, we have one question from Barkha Sharma. She's asking from potency for psoriasis patient. Ma'am, And it depends upon how strong the mentals are. If the mentals are very strong, I usually go by the 1M. If the mentals are not that strong, I go with the 200. In some cases, I directly start with the 50 also. If the mental picture is very much and the conflict is very much clear, you can give the high potency and no repetition after that.
I think sir, that's all for today. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you so much, sir, for giving us your valuable time. And this session will be soon available on Homeopathy 360 YouTube, where you can connect with the audience again. And if anyone want to give suggestion or have any other doubt, they can put in the comment section. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Good night. Good night.